Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to learn a new poem which is named as Amanda. Amanda is the name of a girl whom this whole poetry is being addressed. So before we go ahead with this poetry, I would like to tell you about the writer at first. Its writer is Miss Robin McMaughlin. She was an Australian author. She wrote many books especially for children. So she has written some fictions, and this is the part of poetry which we are going to read about in today's class. So before we begin with the class, let us read out this part first. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things that you want to do, but your parents or elders do not allow you to. To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. So here the writer says that there are many things that each child wants to do in his or her life, but parents always become a big restriction. They do not allow the children to do what they like. So same kind is Amanda character who is depicting every child. तो इस पोएट्री में हम पढ़ेंगे किस तरह से एक बच्ची अमांडा है, वैसे ही बहुत सारे बच्चे, आप सब बच्चे इस दुनिया में हैं जो पेरेंट्स कहते हैं वो करना नहीं चाहते, बल्कि उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो चाहते हैं कि हम क्या करें। वो चाहते हैं कि उन्हें फ्रीडम मिले और वो जो उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते वो भी अलाउ करें। तो इसी तरह की ये पोएट्री है जिसमें अमांडा जो है उससे उसकी मदर कुछ ना कुछ कहती रहती है, लेकिन वो दूसरी ही दुनिया में खोई रहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग जो होती है वो इंस्ट्रक्शंस से होती है। द मदर इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द चाइल्ड एंड शी इज सेइंग डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच, हंच मीन्स बेंडिंग योर शोल्डर्स, Amanda, stop that slouching. Slouching means being so lazy. And sit up straight. So she here in this paragraph, Amanda. So Amanda is the name again, I am telling you. So the poet is describing here Amanda, the little girl who is always pointed out by her mother for her mistakes and how she is imagining the life to be. So in this paragraph, she is telling that she should not be biting her nails. She must be biting her nails. वो अपने दांतों से अपने nails को bite करती होगी, काटती होगी. So and later she says that she should be sitting straight without bending her shoulder. वो अपने कांधे झुकाकर बैठती है, तो उसकी माँ उसको कहती है कि उसको कांधे झुकाकर नहीं बैठना है अमांडा। और उसको क्या कहती है कि वो जो अमांडा की हैबिट है, शी हैज़ अ हैबिट ऑफ बेंडिंग हर शोल्डर एंड सिटिंग लेजीली, is being pointed out because her mother wants her to sit in a straight posture. उसकी माँ उसको कहती है अपने कांधे झुकाकर नहीं बल्कि सीधे होकर बैठो अमांडा, and because of that she is getting scoldings. अब यहाँ देखते हैं हम, there is a languid means relaxed, emerald is green color of sea where the sole inhabitant means residents जो रहते हैं उसमें is me, a mermaid drifting carried blissfully. अब यहाँ वो अपने आप को किसी और दुनिया में इमेजिन करती है। मदर हियर इज स्कोल्डिंग एंड टेलिंग दीज ऑल थिंग्स टू बी डन बाई हर, लेकिन यहाँ वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है और वो क्या फील करती है कि शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी इन टू अ ग्रीन सी, इन द ग्रीन सी। वो अपने आप को, एमरल्ड मीन्स ग्रीन, ग्रीन कलर के सी में वो अपने आप को इमेजिन करती है। शी सेज दैट शी वांट्स टू बी द ओनली रेजिडेंट ऑफ दिस ब्लिसफुल ग्रीन सी। वो चाहती है कि इस समुद्र की वो अकेली मरमेड हो, अकेली रहने वाली हो। मरमेड कौन होती हैं? जो समुद्र में रहने वाली फिश काइंड लेडीज होती हैं। तो वो कहती है कि वो वहीं रहना चाहती है, रिलैक्सिंग रहना चाहती है। शी सेड दैट शी वांट्स टू बी कैरीड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर। जो पानी है वो उसको, करंट जो है पानी की जो धाराएं हैं वो उसको बहाकर ले जाएं। एंड शी शुड बी फीलिंग सो रिलैक्सिंग इन दैट एनवायरनमेंट देयर। तो यहाँ मदर डांट रही है, लेकिन यहाँ वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। वो अपने आप को एक एमरल्ड जैसा समझती है और वो समुद्र में है। वो एक मरमेड है, एक फिश है जिसे पानी बहाकर अपने आप से ले जाए, जल परी है वो एक। नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से मदर उसको स्कोल्ड करती है।
Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Here again the mother is pointing out and asking so many questions. She is telling, mother is asking that she is inquiring actually that whether she has done her homework or not, and then she asks her whether she has cleaned her room or not. Moreover, she is also reminding her to clean her shoes. So here we can see that mother is constantly asking questions regarding her homework being done, whether she has cleaned up her room or not. सो एवरीथिंग यहाँ पर हम देखते हैं कि मदर जो है वो लगातार उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है और उससे इंक्वायर कर रही है कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, उसने अपना रूम साफ़ कर लिया है, उसने अपने शूज़ को साफ़ किया है या नहीं. तो यहाँ मदर इंक्वायर कर रही है सफाई की कि उसने घर में और अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ किया है कि नहीं. लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं वो उसका कितना ऑपोजिट है. कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. ऑर्फन मीन्स द वन हु डजंट हैव पेरेंट्स. उसे लगता है, अब वो अपने आप को महसूस करती है कि वो एक अनाथ है, गलियों में घूम रही है. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट. और हश्ड मीन्स होते हैं चुपचाप शोर करने वाले. वो देखती है कि यहाँ पर जो चुपचाप है उसके पैर से वो क्या करेगी. वहाँ मदर जूते साफ करने को कह रही है, यहाँ वो अपने पैरों से मिट्टियाँ उड़ाने की बात कर रही है. तो और वो पैटर्न यानी मिट्टी से अपने पैरों से कुछ पैटर्न डिज़ाइन जो है उस पर मिट्टी पर या फिर रेत पर बनाएगी. द साइलेंस इज गोल्डन. और उसको जो साइलेंस है वो शी हैज़ कंपेयर्ड हियर दैट इट लुक्स लाइक गोल्डन. वो बहुत प्यारा है और प्रीशियस है. और वो कहती है कि ये जो फ्रीडम है, ऐसी आज़ादी जो है वो स्वीट है. दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज़ विद हर मदर. तो वो कहती है काश मैं अनाथ होती, गलियों में घूमती, नंगे पैर फिरती, गंदी मिट्टी में फिरती और पैटर्न बनाती. और वो साइलेंस जो होता जहाँ मदर चिल्लाने वाली ना होती तो वो गोल्डन होता मेरे लिए, सुनहरा अवसर होता. और जो फ्रीडम होती वो मेरे लिए बहुत स्वीट होती. तो इस तरह से हम देखते हैं शी इज़ कंट्रास्ट ऑफ दिस पार्ट. शी इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट मदर इज इंक्वायरिंग अबाउट. नेक्स्ट देखिए, अब फिर से मदर कहती है डोंट ईट चॉकलेट एमेंडा. अब वो वहाँ पर उसके खाने पीने पर भी कहती है रिमेंबर योर एक्ने, क्योंकि कहती है कि तुम्हारे फेस पर क्या हो जाएंगे, एक्ने निकल आएंगे. अमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. और वो उसको कहती है, शायद उसको लगता है कि वो उसकी तरफ नहीं देख रही है या उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इसलिए वो कहती है कि वो उसकी तरफ देखे. तो यहाँ पर वो उसको कहती है अमांडा कि तुम मेरी तरफ देखो. So here Amanda's mother is disallowing her not to eat chocolate. She is disallowing her to eat chocolates. She reminds her of pimples that Amanda faces due to eating chocolates. At last she scolds her for not paying attention to what her mother says, because here we can see she is saying that you look at me because I am speaking to you. So she is telling that she is not at all ready to even pay attention about what mother is telling. तो यहाँ हम देखते हैं वो माँ कहती है लगातार कि तुम चॉकलेट्स खाओगी एक्ने निकल आएंगे, इसलिए वो उसकी मदर की बात पर ध्यान नहीं देती. तो मदर उसकी तरफ घूर कर देखती है और उससे कहती है मेरी बात को सुनो, पे अटेंशन क्यों नहीं देती हो. अब यहाँ हम फिर देखते हैं वो फिर इमेजरी वर्ल्ड में चली जाती है. या फिर से वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है. आई एम रपुंजल. रपुंजल इज़ अ गर्ल, अ फेरी गर्ल. उसके बहुत लंबे बाल हैं. तो वो समझती है अपने आप को कंपेयर किससे करने लगती है, रपुंजल से. आई हैव नॉट अ केयर. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल मीन्स काम एंड रेयर. और वो अपने आप को यहाँ क्या समझने लगती है, कहती है दैट आई वॉन्ट टू बिकम रपुंजल बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल वेयर रपुंजल यूज टू लिव. वो कहती है काश मैं रपुंजल होती, जिस टावर में वो रहती थी वहाँ लाइफ बिल्कुल अलग होती, शांत होती, मदर की किचकिच नहीं होती. I'll certainly never let down my bright hair. और वो सोचती है काश मेरे भी लंबे लंबे बाल होते और मैं अपने बालों को कभी उन जगह से, उस टावर से नीचे कभी भी नीचे नहीं गिराती. बिकॉज शी थिंक्स लाइक दिस कुड बी द सेफेस्ट प्लेस फॉर हर टू लिव बिकॉज हियर देर वुड बी नो मदर टू स्कोल्ड हर ऑल द टाइम. सो शी फील्स दैट शी वॉज सपोज टू बी रपुंजल हु लिव्ड इन द टावर वेरी क्वाइटली अनडिस्टर्ब्ड इवन बाई हर मदर. तो रपुंजल बनकर मैं काश वहाँ रहती जहाँ पर
उस टावर में कोई नहीं होता, शांति होती, और मैं अपने बालों को कभी, लंबे बालों को नीचे नहीं गिराती, क्योंकि मैं नहीं चाहती मदर जैसी कोई चीज़ लाइफ में आकर मुझे स्कोल्ड करे। लास्ट पर ये लास्ट स्टैंजा है, देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तो यहाँ फिर माँ फिर उससे कहती है कि तुम्हें क्या करना है। सल्किंग मीन्स होता है इन अ बैड मूड, और मूडी हमेशा कभी अच्छे मूड में कभी खराब मूड में, अनस्टेबल होता है उसका मीनिंग। नैग्ड मीन्स होता है हरास करना। तो हियर अमांडा's मदर नाउ warns her for behaving in a very odd manner. She asks her to stop being in a bad mood, and she tells her and blames her of having such an unstable mood, that her mood is not always stable, she is moody, she is having unstable mood. She also scolded her by saying that her behavior will one day make people think that she is constantly being harassed by her mother. तो वो सोचती है कि शायद लोगों को लगेगा कि मैं हमेशा उसको पॉइंट आउट करती रहती हूँ, और इसलिए वो हमेशा बुरे मूड में रहती है, और इसीलिए वो उसको स्कोल्ड करती है कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दूसरे लोगों की तरह अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए, और माँ इस तरह से उसको डोमिनेट करती है। पोइट्री यहीं ख़त्म हो जाती है। इस पोम में हमने देखा कि बच्चों और मदर दोनों का कितना कॉन्ट्रास्ट है। मदर इज सेइंग समथिंग एल्स एंड चाइल्ड इज सेइंग ऑपोजिट ऑफ इट। तो इस तरह से पोइट्री खत्म हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं इसकी पोइटिक डिवाइसेस। यहाँ देखिए, अमांडा एंड अमांडा बोथ आर राइमिंग टुगेदर, सो इट इज ए। स्ट्रेट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दिस, इसलिए ये बी है। फिर अमांडा, इसलिए ये ए हो जाते हैं। ये सी एंड मी आर राइमिंग टुगेदर, सो दिस बिकम्स सी, and again Amanda becomes A. Did you फिर Amanda is A. Here shoes become D. Amanda again it becomes A. फिर next line में देखिए, street, feet and sweet all three are rhyming together, so E, E and E. Again Amanda and Amanda are rhyming together, so A. Here it is U, totally different, so after E F comes, so it is F. Again Amanda, so A. Here in the next paragraph, care, rare and hair are rhyming together, so G, G and G. Again Amanda, Amanda and Amanda, so this A and A rhyming to is there, and here U, after G H comes, so this is H. In this way it has very odd rhyming pattern, which I have already mentioned, so that you do not find any problem while reading it. अब आते हैं हम पोइटिक डिवाइसेस पे। इसमें एनाफोरा यूज़ हुआ है, डोंट बाइट, डोंट हंच। ये रिपीटेडली कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में जब एक से वर्ड्स यूज़ होते हैं, सो डोंट को रिपीट किया गया है 2 लाइनों में, इसलिए ये एनाफोरा है। नेक्स्ट इज एजोनेंस। यहाँ ओ साउंड पे प्रेशर है, डोंट हंच योर शोल्डर, सो दिस ओ ववल साउंड है। यहाँ देखिए, दो टोल्ड यू योर शूज, सो हियर ऑल्सो ओ साउंड इज बीइंग प्रेशराइज्ड, so in these 2 lines we find here assonance is there. Now we'll see alliteration, stop, that slouching and sit silently, so all s sa sound is being repeated, इसलिए यहाँ alliteration है। इमेजरी पे आते हैं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली यानी पानी में बह जाना। जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमें एक इमेजिनेशन आती है कि अमांडा जो है एक मछली है, एक जल परी है, या एक बहने वाले पानी की धाराओं पर बैठी है जहाँ से वो बहकर चली जाती है। तो ये हमारे माइंड में इमेजरी क्रिएट करती है, इसलिए यहाँ इमेजरी का यूसेज है। रेपिटेशन मीन्स अमांडा वर्ड हैज़ बीन रिपीटेडली यूज्ड, सो इस पोएम में रेपिटेशन का भी यूज हुआ है। मेटाफर देखिए, साइलेंस हैज़ बीन कंपेयर्ड विद ग्लोरी, ग्लोरियस इज लाइक गोल्डन, तो इसमें ग्लोरी जो है वो कॉमन है, ग्लोरियस कॉमन है, और साइलेंस को इसमें गोल्डन कंपेयर किया गया है, जहाँ एज या लाइक जैसे वर्ड यूज नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ ये मेटाफर है। फ्रीडम इज स्वीट इन टेस्ट, सो फ्रीडम हैज़ बीन
compared with sweetness. And what is common in both of them? Sweetness is common in both of them. यहाँ देखिए, silence is golden, the freedom is sweet. तो silence has been compared with gloriousness and its color is golden, and freedom has been compared with the taste which is sweet. तो इस तरह से ये पोएट्री यहीं ख़त्म हो जाती है. आई होप गाइज यू एंजॉयड इट एंड इट वॉज रियली लवली पोएट्री. We will soon meet in next poem. Till then, bye bye. Do not forget to subscribe the channel for more updates. Do not forget to like and comment for the questions you have in your mind. Till then, take care. Bye.